Hi, welcome back, dosto. This is me, Joshi sir. And in today's session, we are going to revise the first four important formulas of quarter joint. So to save the time, I have written those formulas in front of us, and with those formulas, we are going to move ahead in the subject. What is the prime motto to do this part is get an understanding or to increase the familiarity for the formulas. इट्स सिंपल लैंग्वेज में हम लोग ये बात कर सकते हैं कि अगर कोई फॉर्मूला कोई हमें देता है तो उसे सीधा हाँ सर ने फॉर्मूला दिया करके उसे नोट डाउन करके उसे रट्टा मार के आगे जाने की जगह पे अगर हम लोग कोशिश कर पाएंगे कि ये फॉर्मूला कैसे डिजाइन हुआ एंड इसे हम लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं तो दोस्तों अपने लिए बहुत आसान काम हो सकता है। तो अगर हम लोग डिजाइन के लिए स्टार्ट करते हैं तो मैं आप सभी से पहले रिक्वेस्ट करूंगा ट्राई टू गो थ्रू द डायग्राम ऑफ एन क्वार्टर जॉइंट जिससे हमें उसके एब्रिविएशंस के बारे में पता चलेगा। टोटल 5 एब्रिविएशंस पहले हम लोग डायमीटर के लिए यूज करेंगे, 2 एब्रिविएशंस हम लोग थिकनेस के लिए यूज करेंगे। टेक्निकली स्पीकिंग देयर आर 3 एब्रिविएशंस फॉर थिकनेस। श्योर, one is called as a T, it is called as a thickness for quarter. Next one, what we are going to use is called as a T1. What is that T1? So T1 is considered as thickness of spigot collar. And after that, दोस्तों, we are going to enter into जैसे अभी हमने देखा T1 is a thickness of spigot collar, वैसे हम लोग T2 नहीं कहते by using a symbol C which represents the thickness of socket collar. तो 5 डायमीटर हो गए, 3 थिकनेस हमें मिल गए। Then we can see the small b. It is the mean width of quarter. We know quarter one side straight आएगा, another side में थोड़ा सा taper is available on that quarter. So we are not going to consider the topmost dimension या bottommost dimension, but we are going to consider a mid value, and that mid value is considered as the mean width of quarter. It is represented by small letter b. And the last important dimension what we have is small a. What is the small a, दोस्तों? Small a will represent us the horizontal distance between slot what we have made on the joint. So it is a distance from the slot to spigot end. We know spigot will never make a contact with socket end. Socket के जो inner side होंगे दोस्तों वहां पे spigot तो कोई contact में आने वाला नहीं है, श्योर। लेकिन spigot का जो slot से आगे का distance जाएगा तो आज हम लोग अगर एक सिंपल फिंगर सर्कल अज्यूम करते हैं तो हम लोग ये बोलेंगे कि यस सर दिस इज नथिंग बट अ स्लॉट एंड व्हाट वी कैन अज्यूम। तो चलिए मैं थोड़ा सा और नजदीक लाके आपको दिखा सकता हूँ। सर ये जो बीच का पार्ट है ये बीच के पार्ट को वी कैन कंसिडर इट एज अ स्लॉट विच इज यूज्ड फॉर इंसर्शन ऑफ एन क्वार्टर। सो क्वार्टर विल बी इंसर्टेड इन दिस फैशन। तो ये स्लॉट के आगे का जो एंड पार्ट है स्पिगॉट का दोस्तों उसे हम लोग क्या लेंथ को नाम देना चाहेंगे, दैट लेंथ इज कंसिडर्ड एज small a. So we have taken 5 diameters, 3 thickness, T, T1 and C. D is a mean width, sure. So 5 और 3 8 और एक 9 हो गया। A is the distance between slot and the basic end of spigot, 10 हो गए। And the last one is the L, that is the length of quarter जो अभी हमने डिस्कस किया। These are the important points जिसके साथ दोस्तों आज हमें आगे जाना है। But what is the important thing is the 3 important parameters, and these 3 important parameters will be always tensile stress, crushing stress, and shear stress. So we should know what is the meaning of tensile stress, crushing stress, and shear stress, and in which cases they will be considered to be applicable on a particular joint or on a particular part. The answer is very simple. When we are going to apply pull forces, we are going to consider Joshi sir. We are going to consider Joshi sir as our body, and these are the 2 forces. Suppose we are going to assume these 2 forces are coaxial forces, equal in magnitude but acting in opposite direction. तो हमें पता है यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, तो यहाँ पे पुल अप्लाई होगा। एंड दोस्तों जैसे ही यहाँ पे पुल फोर्स अप्लाई होगा हम लोग वहां पे बात कर सकते हैं सर दिस पुल फोर्स विल क्रिएट टेंसाइल फोर्सेस, and whenever tensile forces are applied on that body will be under effect of tensile stress. In simple fashion we say it is under tension. Same fashion कल पुल की जगह पे हम लोग कोई पुश की बात करेंगे। We know crushing of an bottle, एक बॉटल को लेके हम लोग क्रश करते हैं, हमें पता है उसे कैसे क्रश किया जाता है। So these are the sigma c forces.
First one are tensile sigma T forces. And the last option is this option. What is this option? We can use it on our calculator also, what we have already studied. So this is nothing but effect of an shear stress, shear force. For that purpose, we should remember shear force must be applicable on the surface of the body. Where shear force must be applicable, so it must be applicable on the surface of body, with which we can say, yes, shear stress can be effectively produced in that part. Sure. Now with this concept, now we're interested to move into the concept of design of quarter joint. So with this base and two important statements, what is that important statement? First one is the formula, sigma is equal to P by A, P is equal to A into sigma. As per the type of stress, sigma may be written as sigma T, sigma C, or tau. That is a tensile, crushing, or a shear part. Sure. And at the end of this part, after this part, we have already discussed the complete moral of story in a simple language Marathi या basic vernacular language statement में मैंने आपको दिया था. And what was that statement? So that statement was expressed in Marathi language. It is in this fashion. कमी तिथे आमी. What was that line? कमी तिथे आमी. मतलब जब भी अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे, हम लोग खुद से पूछेंगे कि पूरे पार्ट में वहां पे कम से कम एरिया कहाँ पे है, बिकॉज जहां पे कम से कम एरिया है वो पहले टूटेगा, वो पहले फेल होगा. तो वहां पे जो एरिया रेजिस्टेंस में आएगा दोस्तों, वो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. एंड जिस दिन हमें वो बातें समझ में आ जाएंगी, ये सारे के सारे फॉर्मूलाज अपने साथ आ जाएंगे. तो चलिए चलते हैं फॉर्मूलाज की तरफ. First title is design of quarter joint. And we're just having a circular part. I have not written the title. We can discuss that title. So what was that title? So title is design of anyone failure of rod in a tension. What was that title? It was design of failure of rod in a tension. That's a very important point. तो जब भी हम लोग rod को tension में assume करेंगे तो क्या होगा? We know the rod. So it is nothing but a simple diameter. है कि नहीं ये? तो हम लोग assume करेंगे कि rod is nothing but a diameter. Constant diameter है. कहाँ पे फोर्स अप्लाई किया है? सेंटर में अप्लाई किया है. उसे हम लोग पुल करेंगे, मतलब कहाँ पे आएगा? So it will be under tension. And when it will be under tension, at that part, what we can say that, what we can comment that it will fail at its cross section. Sure, we already discussed that part. So इसे रोटेट करके सामने लाएंगे तो हमें दिखेगा उसका रेजिस्टिंग एरिया. ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. जो एरिया रेजिस्ट करेगा उस पे हमें फोकस करना है. एक टाइम वो समझ में आ जाएगा तो दोस्तों आगे की बातें हमें आती जाएंगी. तो अभी रॉड पे देखेंगे तो हमें समझ में आता है रॉड का पूरा सरफेस वहां पे रेजिस्ट करेगा फेल्यूलर के लिए. जब पूरा का पूरा सरफेस रेजिस्टेंस देगा तो इट इज नथिंग बट अ सर्कल. एंड इस सर्कल का आज हमें एरिया आना चाहिए. एंड व्हाट विल बी दैट एरिया? सर एरिया ऑफ सर्कल इज गिवन बाय pi by 4d square. Now we're having P. We know the formula. What is that formula? P is equal to A into sigma T. Just substitute the value. What is formula of A? It is pi by 4d square. So by putting that formula of A, we have the first answer. Sure. Now we can move to the second part. And what is the second part? Its title is failure of spigot in a tension. So every time we have a problem, we have a title, try to recollect the diagram, or otherwise we can show you that diagram by just sharing the screen. सही बात है. So whenever we go for sharing of screen, we can see that part in front of us. पूरा का पूरा हमें वहाँ पे दिखाई दे सकता है कि नहीं? So right now I have started with an sharing. You can see that diagram on your screen. Just try to zoom it out. बराबर? So we are observing that particular diagram in front of us. So इसमें अभी हमें spigot देखना है. तो दोस्तों spigot कहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? So we can see the spigot at its bottom या innermost part. लेकिन ये तो D2 डायमीटर के साथ कांस्टेंट जाने वाला पार्ट है, लेकिन वो सिर्फ कांस्टेंट डायमीटर के साथ जाएगा क्या? हाँ सर, लेकिन उसके साथ एक प्रोविजन भी किया है. एंड दैट प्रोविजन इज दैट सो वी हैव मेड एन स्लॉट. व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेड एन स्लॉट. वी नो द कांसेप्ट ऑफ स्लॉट. एनीवन कैन लेट मी नो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ स्लॉट? सो वी ऑलरेडी सीन द कांसेप्ट ऑफ स्लॉट एंड अ स्लॉट हैज बीन ऑलरेडी शोन हियर टॉट टू अस. श्योर, सब बच्चों ने देखा है स्लॉट. वी आर नोइंग द कांसेप्ट ऑफ स्लॉट. तो ये स्लॉट भाई साहब अभी अपने पास बना हुआ है. कहाँ पे? अपने रॉड पे बना हुआ है.
तो हमें समझ में आएगा सर ने मुझे अभी कंसेप्ट समझाया था एंड वो कंसेप्ट का नाम था कमी तिथे आम्ही, मतलब सर कम से कम मटेरियल कहाँ पे है वो फोकस करो। तो अभी हमें समझ में आता है सर वो रॉड में जहाँ पे स्लॉट बनाया गया है वहां पे कम मटेरियल है एंड द चांसेस ऑफ फेल्यूर और ब्रेकेज आर मैक्सिमम इन दैट पार्ट। सो व्हेन वी आर गोइंग टू अगेन अप्लाई पुल फोर्सेस, क्या होगा वहां पे सर ये जो क्वार्टर है, क्वार्टर के वजह से पीछे का पार्ट तो आपका बाहर नहीं आ सकता है, इधर का पार्ट आगे जाने की बात करेगा, सो इट विल फेल। सो व्हेन इट विल फेल हाउ इट विल लुक लाइक, सो अभी जो हमने स्क्रीन पे डायग्राम देखा था सेम डायग्राम दोस्तों मैं आपके साथ आपके मोबाइल पे आपके डिवाइस पे भी शेयर करना चाहता हूँ। व्हाट इज दैट डायग्राम? सो इट इज नथिंग बट लाइक अ simple circle with a slot available at its part. Now, number of times question will arise in our mind, why slot is available at center? How it will be? तो दोस्तों इसका आंसर है आपने फोर्स कहाँ पे अप्लाई किया था, प्लीज बताइए मुझे। Well, we applied the force, just stopping the sharing, coming back to Joshi sir, tell me कहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया था? So we applied the force at the end of part. सही बात है। तो जब एंड पे हमने फोर्स अप्लाई किया है उसे हम लोग पुल करने की बात करेंगे तो कहाँ पे टूटेगा? सो सेंटर पे टूटेगा। बट दैट इज अवर फ्रंट व्यू, वी वांट टू सी द क्रॉस सेक्शन ना, एंड टू सी दैट क्रॉस सेक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, प्लीज सी व्हाट आई एम शोइंग टू यू। व्हाट वी हैव डन, वी हैव रोटेटेड दैट पार्ट एंड वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट पार्ट इन फ्रंट ऑफ अस। सो जैसे हम लोग ये ब्रेक हुआ अपना रॉड देखेंगे, लेकिन अच्छे लैंग्वेज में बात करेंगे तो स्पिगॉट देखेंगे, तो स्पिगॉट के सामने सेंटर में स्लॉट भी आएगा। अभी क्वेश्चन माइंड में आता है ये स्लॉट किसका है, कौन से ऑब्जेक्ट का है, तो हम लोग बात करते हैं सही ऐसे हमने इसमें ये स्लॉट में क्या इंसर्ट किया था, वो इंसर्टेड ए क्वार्टर इनटू इट एंड जैसे दोस्तों उसे आज हमने रोटेट करके देखा है यहाँ पे, तो व्हाट वी ऑब्जर्विंग इज नथिंग बट अ थिकनेस ऑफ क्वार्टर। एंड दोस्तों ये जो थिकनेस ऑफ क्वार्टर है, ये थिकनेस ऑफ क्वार्टर आज हमें ये डायग्राम में यहाँ पे देखने को मिल रहा है। श्योर, अभी यहाँ पे जो डायग्राम में हम लोग क्वार्टर का थिकनेस देख रहे हैं तो बॉटम में तो टी है, तो क्वेश्चन आता है उसकी हाइट क्या होगी। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विद सिंपल आंसर इंक्लूडेड इन दैट क्वेश्चन ओनली। सर कहाँ पे है? स्पिगॉट पे है। स्पिगॉट का डायमीटर विल बी ऑलवेज इट्स हाइट एंड इट्स हाइट विल बी d2, तो हम लोग बोलेंगे d2 इंटू टी इज नथिंग बट एरिया जो बीच में नहीं है, बाकी पूरा का पूरा एरिया वहां पे कॉन्टैक्ट बनाने वाला है। श्योर, तो ये पूरा का पूरा एरिया हमें कैसे मिलेगा? इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया, यूज द कांसेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। द कंप्लीट एरिया ऑफ एन सर्कल इज गिवन बाय पाई बाय 4 d स्क्वायर, बट इन दिस केस ये तो स्पिगॉट भाई साहब है एंड स्पिगॉट भाई साहब का डायमीटर क्या है? d2 है, तो वी विल राइट इट एज area is pi by 4 d2 square minus, we are going to remove that slip of d2 into t, so it is written as minus a d2t. Sure, every time we have the answer of area, just put a bracket to it. It may be a circular bracket, square bracket, a curly bracket. It will be your call. Just write a appropriate stress outside that part. Sure, so we have completed the second point, that is failure of anyone. It is a failure of spigot in a tension. The third part is failure of quarter in crushing. Now we already seen quarter, how the quarter will be. So it is inserted in this fashion. Sure. Now I am interested to crush this part. Simple language में बात करेंगे तो ये अभी जो सर 4 उंगलियां हमें दिखा रहे हैं, we will consider just this as an quarter. And when it is inserted in a slot, just assume कीजिए इसे crush करने के लिए, we know how crushing is done. Sure. In this fashion, crushing operation that is compressive in nature should be applied on that part. तो अभी ये जो क्वार्टर अंदर गया है इसे क्रश करने के लिए इसके सरफेस पे हमें फोर्सेस अप्लाई करने पड़ेंगे। तो भाई साहब हम लोग वापस डायग्राम में जाके देखना चाहेंगे कि व्हाट इज दैट पार्ट which is actually applying yes pressure on that part, which is applying forces on that part, and वो क्या आएगा? तो चलिए उस पर जाके देखने की बात करते हैं। तो डायग्राम में आ जाते हैं। श्योर, तो डायग्राम इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ अस, उसे जूम करके ले लो ना। उसे अभी हमें समझ में आ गया, आप ये स्पिगॉट की बात कर रहे हैं। स्पिगॉट के अंदर जो वर्टिकल है वो अपना क्वार्टर है, तो क्वार्टर को सर दोनों साइड से हम लोग दबाने वाले हैं। वी आर गोइंग टू अप्लाई प्रेशर या फोर्स ऑन दैट क्वार्टर। तो सिंपल वे में दोस्तों ये जो स्पिगॉट के अंदर क्वार्टर का पार्ट है इसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करने वाले। अच्छी बात है, सही बात है। Can anyone will let me know
what will be its important dimension which are going to resist that part. मतलब क्या सर, क्या बी काम में आएगा, क्या क्वार्टर का थिकनेस टी काम में आएगा, या क्वार्टर की हाइट D2 जो स्पिगॉट के अंदर है वो काम में आएगी. उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा कि भाई उससे हम लोग क्रश कैसे करने वाले हैं. तो हम लोग क्वार्टर को ऐसे पकड़ के क्रश करेंगे. तो जस्ट अज्यूम कीजिए क्वार्टर को मैं कैसे पकड़ने वाला हूँ. वी आर गोइंग टू होल्ड इट फ्रॉम एन साइड व्यू. तो क्वार्टर को जब हम लोग साइड व्यू से पकड़ के दबाएंगे तो वो बी में कितना बड़ा लेंथ में है हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. फर्क किससे पड़ेगा, उसके थिकनेस से पड़ेगा. फर्क किससे पड़ेगा, उसके थिकनेस से पड़ेगा. एंड इसके पहले भी हमने डिस्कस किया, हमने एक सिंपल एक नोट आपको दिखाया, उसे हमने दबा दिया तो वैसा भी इजीली दब गया वो. लेकिन जैसे हमने एक स्टैक ऑफ नोट्स वहां पे यूज किया, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्रेस. सिंपल एग्जांपल हम लोग घर में भी देखते हैं. एक छोटा सा बिस्किट आप ले लीजिए, बिस्किट को एक हाथ से दबा देने की कोशिश करो भाई, वो इजीली आपका क्रश हो जाएगा बिस्किट. सही बात है कि नहीं, इजीली हम लोग उसको क्रश कर पाएंगे. लेकिन वही बिस्किट का पूरा पैक मैं आपके हाथ में देता हूँ एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू ट्राई टू क्रश दैट पैक. तो क्या वो इतने इजीली क्रश होगा जितना पहले एक सिंगल बिस्किट आप क्रश कर सकते थे? बोलिए, व्हाट विल बी आवर आंसर, यस और नो? हाँ सर, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा. मतलब वहां पे क्या बड़ा है सर, वहां पे बिस्किट का स्टैक बड़ा है, उसका थिकनेस बड़ा है, तो वहां से हमें उसे क्रश करने में तकलीफ होगी. दैट इज द इम्पोर्टेंट पैरामीटर. लेकिन यहाँ पे अपना बिस्किट तो है, ये क्वार्टर का हाइट हमें इम्पोर्टेंट है. तो बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं एंड दे विल कंसिडर दैट हाइट एज स्मॉल l या द हाइट l, हाइट ऑफ क्वार्टर. Somebody may think for D4 the height, the maximum diameter of an socket collar. Yeah, somebody can even think about D1, that is the diameter of an socket. But just try to see that what is the minimum area. सरांनी काय सांगितलं आपल्याला, कमी तिथे आम्ही. हमेशा हमने बात की है कम से कम डायमीटर, कम से कम एरिया. ओके, बीच का पार्ट जब तक है तब तक भाई साहब ऊपर से आप कितना भी दबा वो अंदर आने वाला नहीं है. तो ये अंदर का पार्ट उसे रेजिस्ट करेगा. श्योर. तो जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो वीकनेस हमें ढूंढना है, जो हमें बना के रखना है. जिस दिन वो वीकनेस अपना टूट जाएगा वैसा हम लोग कोलैप्स हो जाते हैं. तो ऐसे क्वार्टर में अभी यहाँ पे वीकनेस की बात कौन सी है, सो वो है उसकी हाइट D2 एंड अनदर इज नथिंग बट इट्स थिकनेस T. तो उससे अभी हम लोग यूज करेंगे एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर व्हिच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन आवर बोर्ड आल्सो. लेकिन हम लोग यहाँ पे भी देखने की कोशिश करेंगे. So what is that part? It is a failure of a rod or quarter in crushing given by P is equal to D2T into sigma C. सही बात है. तो ये कहाँ पे अवेलेबल है, तो ये अभी हमने बोर्ड पे भी लिखा है. Sure, but to save the time, I'm directly jumping to fourth formula also. And what is that fourth formula? So that fourth formula is, yes, it is a failure of, complete zoom किया मैंने आपके लिए, देख रहे हैं ना सारे बच्चे. It is a failure of this part. ये कौन सा पार्ट है आपका, सो इट इज नथिंग बट अवर सॉकेट. ये सॉकेट को अभी हम लोग पुल करके तोड़ने की बात करेंगे. वी आर गोइंग टू पुल दैट सॉकेट एंड वी आर इंटरेस्टेड टू ब्रेक इट पार्ट. नो प्रॉब्लम. इट इज अ सिमिलर कांसेप्ट व्हाट वी हैड जस्ट डन फॉर कांसेप्ट ऑफ स्पिगॉट. अभी हमने स्पिगॉट को भी टेंशन में तोड़ने की बात की थी ना. क्या किया था हमने उसे पुल किया था तो वो उसके स्लॉट में टूट जाएगा. सर, सॉकेट इज ऑल्सो हैविंग द सेम वीकनेस. Socket is also having the same weakness and it is also having a slot made into that socket part. But what is the difference between socket and spigot? So spigot was a solid part, so it is just represented by a single circle. But in case of socket, if you observe it properly, socket is not a solid part. What is visible in front of us, so it is an hollow part. And यही hollow part हम लोग यहाँ पे बाजू में साइड व्यू में भी देख पा सकते हैं. मतलब पूरा का पूरा तो सॉकेट का कॉलर हो गया और उसके अंदर अगर दोस्तों हम लोग ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो दिस इज दैट पार्ट ऑफ सॉकेट, है कि नहीं, जो अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी तरीके से देख सकते हैं. तो जहाँ पे आप अज्यूम कीजिए अंदर का एक सर्कल एंड उसके अंदर का और एक सर्कल, ये क्या हो गया, सो ये हो गया अपना सॉकेट. मैं बहुत टाइम बच्चों को कहता हूँ, अगर आपने बचपन से कोई गोली खाया होगा, बहुत टाइम चॉकलेट वगैरह गोलियां खाते हैं ना हम लोग, तो एक पोलो नाम की गोली आती है, देखो पोलो, द मिंट विथ होल, ऐसा उसका एक कैची टैगलाइन था. मुझे अच्छा लगता है, बहुत सारे मैं टैगलाइन देखते रहता हूँ. तो दोस्तों पोलो की गोली दीजिए. ये पोलो की गोली ना हमें ये क्वार्टर जॉइंट पढ़ने के लिए बहुत हेल्प करेगी. आई एम नॉट एडवर्टाइजिंग फॉर एनीथिंग, इट इज जस्ट हेल्पफुल फॉर अवर स्टडी पार्ट ऑफ.
ठीक है ना। तो एक पोलो की गोली लो, या आप कह सकते हैं सब बचपन में ना हमने वो रिंग रिंग खेला था, एक छोटे बच्चों के साथ रिंग देते ना व्हाइट कलर का, तो इधर से उधर फेंकते हैं, बच्चे भाग के लेके आते हैं, कभी डॉग के साथ भी खेलते हैं। सो ये रिंग जैसा कंसेप्ट है जिसे हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, इट इज नथिंग बट आवर सॉकेट। बट एट द सेम टाइम ये सॉकेट जो है इसके अंदर भी ना सर स्लॉट गया, यू कैन सी इट इन द साइड व्यू ऑल्सो। इस स्लॉट के साथ अभी हमें कंसेप्ट में काम करना है, तो ये दिखेगा कैसे, होगा कैसे, तो उसके लिए अगेन हमें बोर्ड पे आना पड़ेगा एंड हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो भी बोर्ड पे है उसे देखना है, उस पर फोकस कीजिए। Sure, I'm just adjusting the screen in front of you. Yes, so this is that part. So we're observing the failure of socket in the tension. And as per discussion, we have drawn a very good diagram of an socket. अच्छा तरीके से हमने बना के दिया कि ना दोस्तों, सॉकेट का डायग्राम बनाया, outside diameter was D1, inside diameter was a D2, so we are represented is as a D1, inner diameter as a D2. At the same time, we observed a slot which is made at its center only. So try to draw a vertical center line, and by showing an equidistant on both sides, that is on equidistance, we have drawn two vertical lines which represent us the presence of slot. Sure. And to learn this part, number of times we can see in number of textbooks, reference books that are shown by n number of ideas. Somebody will tell us a simple idea. Ring के अंदर ring है, annular part है, तो what it will be? Outside diameter minus inside diameter. लेकिन पूरा लेना है, we need to consider a whole diameter. तो क्या मिलेगा? It is pi by 4 d1 square. Outside diameter का एरिया क्या मिलेगा ना, सामने का ये एरिया क्या आएगा? pi by 4 d1 square. इसके अंदर का पार्ट हमने पंच किया, रिमूव किया, कौन सा था वो? स्पिगॉट का था, डायमीटर वाज d2, सो माइनस क्या होगा? माइनस pi by 4 d2 square, and what we can see, it is pi by 4 d1 square minus pi by 4 d2 square. That's a very simple way which is explained in number of textbooks, reference books, what you can say. फिर कोई ऑथर कहता है वहां पे कि भाई पूरा का पूरा स्लॉट वहां से रिमूव हो गया। अच्छा है, तो स्लॉट मतलब वो स्पिगॉट जैसा कंसेप्ट है, रेक्टेंगल को रिमूव करेंगे। व्हाट इज हाइट ऑफ रेक्टेंगल? d1, बड़ा वाला ना, बेस वो तो सेम है t, तो माइनस हमने किया d1 इंटू टी। फिर कोई बच्चा जाग जाता है, बोलता है सर ध्यान से देखो, वी ऑलरेडी रिमूव द सेंटर पार्ट, तो d2 इंटू टी उसमें है ही नहीं, d1 टी में आप रिमूव क्या करेंगे? तो वापिस वहां पे वो लोग क्या करते हैं, प्लस d2 इंटू टी करके देते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टार्ट होता है दोस्तों के माइंड, आप थोड़ा सा डिफिकल्ट है, नो प्रॉब्लम, वी आर विथ अस, हम लोग और अच्छा सॉल्यूशन ढूंढने की बात करेंगे। We can go for the same step, pi by 4 common d1 square minus d2 square. Taking minus sign common, we can write d1 minus d2 into t. Sure. So this is an idea which is available in different textbooks. But number of times what we feel, it may be something difficult one, so I come out with two options. These are our success options. This is the first option, and this is the second option, what I come out after few days or few years. ठीक है नहीं, जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो लोग ये पढ़ाते हैं, 5-10 साल होने के बाद यहाँ तक पहुंच जाते हैं, एंड 15-20 साल होने के बाद फिर ध्यान में आता है इसको और हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, एंड आपके बैच को उसका एडवांटेज मिलेगा। यू आर द 22nd बैच ऑफ आवर क्लास जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। श्योर, तो चलिए बात करते हैं। क्या कि हमने यहाँ पे सर ने यही कंसेप्ट नीचे लिखा, लेकिन यहाँ पे हमने बोला कि सर डायरेक्टली ये लिखने की जगह पे ये फॉर्मूला डायरेक्टली वहां पे अप्लाई कर दो, तो हमने ये फॉर्मूला डायरेक्टली वहां पे अप्लाई किया, लेकिन वो भी क्या होता है, थोड़ा सा हेवी जाता है बच्चों को, तो वी आर कम आउट विद बेस्ट ऑप्शन व्हाट वी फील, शायद और भी आगे अच्छा आ सकता है, देखते हैं आप में से कोई बच्चा मुझे सजेस्ट करके बताएगा तो। श्योर, क्रेडिट इज विद स्टूडेंट्स ओनली। सर ये क्या है यहाँ पे, तो सर ये बीच का जो पोर्शन हमने रिमूव किया है, रिमूव दैट पोर्शन, वो हमें वहां पे चाहिए। तो सिंपल फैशन में हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूव्ड पोर्शन है, अच्छा है, तो सीधा सीधा डायरेक्ट रेक्टेंगल ढूंढो ना। तो बच्चा क्वेश्चन पूछता है वहां पे किधर रेक्टेंगल बचा, फिर कोई बच्चों को उसमें 2-2 रेक्टेंगल रखते हैं ना। रेक्टेंगल कितना है दादा, how many rectangles are there? Only one rectangle. What is that height of rectangle? d1. What is the base of that rectangle? t. है कि नहीं, तो अपने पास एक ले लिया हमने रेक्टेंगल और उसको बोल दिया भाई साहब इसका हाइट है d1 और इसका बेस है t,
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बीच का स्क्रीन दिख रहा है ना, ये स्क्रीन का पोर्शन आपके पास है ही नहीं। नो प्रॉब्लम ना, हमें क्या चाहिए, ये ऊपर वाला बचा हुआ मटेरियल और ये नीचे बचा हुआ मटेरियल, इनकी टोटल मुझे हाइट चाहिए। तो देखिए दोस्तों कितना सिंपल हम लोग कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ये भाई साहब टोटल मोबाइल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी हाइट है 20 सेंटीमीटर, और ये जो बीच का पार्ट है इसका हाइट है 17 सेंटीमीटर। ये स्क्रीन की हाइट क्या है, 17 सेंटीमीटर है। ये टोटल हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो 20 में से अगर मैं 17 को निकाल देता हूँ तो मुझे 3 सेंटीमीटर जो आंसर मिलेगा। तो ये 3 सेंटीमीटर क्या ऊपर वाले भाई साहब का हाइट है, या वेदर इट इज हाइट ऑफ एन बॉटम पार्ट? What will be our answer? No, sir. The answer 3 centimeter will belong to an addition of height, that is this height plus this height. यही तो हमें चाहिए। सो जो अभी हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कर सकते हैं, मोबाइल पे बात करेंगे तो आसान होता है वहां पे रेंज में डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों सेम पैरामीटर वी आर इंटरेस्टेड टू यूज फॉर आवर डायमीटर्स, एंड द टोटल height is considered as d1. When we already removed the height d2, we can say the height will be d1 minus d2. We have got a total height. Is that clear? What is the base of that rectangle? It is a t. And ये पूरा का पूरा क्या होने वाला है? It is going to be subtracted. It has to be removed from the part. So what is required to be done? कोई भी पार्ट हम रिमूव करते हैं तो it should be represented as minus sign. ब्रैकेट में देते हैं तो ब्रैकेट में हाइट मेंशन करेंगे, and we understood the height perfectly. It is a 20 सेंटीमीटर से 17 को निकाल दिया। तो भाई साहब ये और ये दोनों मिला के 3 बचेगा, लेकिन दोनों को अलग लिखने की जरूरत है? नो सर। सो वी कैन से इट इज अ d1 minus d2 लिख के हो गया into the base t, and that is a simplified version what we obtained for all of you. Sure. So this was the area, and when we just multiplied by t, what we can say, we have got the complete answer of that part. So these are the 4 important formulas what we have revised. But now आप सोचेंगे what will be but we are just consuming much more time in that part, so we are going to break it into 2 parts. पहला पार्ट रिकॉर्डिंग का यहाँ पे रोकते हैं एंड हम लोग फिर सेकंड पार्ट में जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। दिस इज मी जोशी सर रिकॉर्डिंग इट फॉर सक्सेस इंजीनियरिंग क्लासेस एंड इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन अवर साइट ऑल्सो। तो सब्सक्राइब कीजिए तो आपको तुरंत वो मिल जाएगा। थैंक यू।